Treat this video like a test. What we're going to do in this video is look at important questions from CDS, CAPF and Geoscientist in a test format. In the last video, I had covered polity, economy, science and tech, IR and reports. Some of you had said that I should not mark the question so that you can, solve it live with me. So in this video, that's exactly what we're going to do. Questions of environment, geography, history, and government schemes. They're going to be like a test. The answer will not be marked. Look at the question, pause the video, try and answer the question, and then I'll give you the explanation. We're going to do a lot of questions today, and this frankly will be better than any other test series that you can attempt at this moment, because these are questions that UPSC has made itself. Let's get started. So these are the first questions. We start from environment. Okay, look at the first question, pause the video and solve. So it says cheetahs brought from Namibia are coming to which of the following national parks? The answer here is Kuno Palpur National Park, because that is where the cheetahs are coming. Now this question has a very high chance of repetition. It has been asked multiple times. By the way, if you want the PDF of these questions, you can go to my Telegram channel. The link is in the description. All right, second question. This question you should not pause and solve, because this is a very, very factual question, and honestly it's not that important for UPSC. The answer here is B. So World Wetlands Day is on 2nd February, International Tiger Day is on 29 July, etc, etc. But the thing here is I will show you through this question only how much repetition happens in UPSC questions. Okay, chalo, let's go forward. Again, very factual question. Do not need to solve here directly, but this question, if you look at it, what is important here is that you must understand that these terms, what does very dense forest mean, what does moderately dense forest mean, what does open forest mean, what is canopy density, what is recorded forest area. These things are important for this year also, because the Indian State of Forest Report is bound to be published in 2023 also. Right? So it's important who publishes the Indian State of Forest Report, etc, etc. These things you need to do. So the terminologies are important, and in news this year, because of the Indian Express investigation, this thing was in news. उस investigation में क्या था, that the forest area that was actually recorded, वो थोड़ा false record हो रहा था because of some of the technical irregularities, etc. Right? So these things are important. जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, they will be visible in the PDF. Whatever I'm speaking is written here. अब जियो साइंटिस्ट के क्वेश्चन देखते हैं. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. Which of the following has the adaptation of echolocation to detect their prey? ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? We will use a technique called word breakdown. Echo or echo is for sound. Location stands for locating. So they are using sound to locate their prey. So this is basically nothing but sonar happening in a living being, and this happens in bats. Answer here is D. Next question is, which of the following is the most important stage in the process of ecological succession? अब देखो, 6 stages of ecological succession were given by Clement. The answer here is C. Reaction Y. This is the stage where all the species are fighting to lead to the formation of the stable community. Just before the stable community, the reaction is happening. This is where the diversity is highest, where the number of species have exceeded the carrying capacity of the ecosystem. So answer here is reaction. Important question है. Even the concept of ecological succession is important. इस पे पूछा भी हुआ UPSC ने 2021 में. So this becomes very important for us. This question has high chance of being repeated. Next question, ये भी important है and you should try and solve. Which of the following trophic structures of ecosystems, both fungi and bacteria occur? So it's an easy question. Both fungi and bacteria occur in decomposers, right? Moving on to the next one. Now, इस question में आप logic लगा सकते हो. Which one of the following managed ecosystems has the highest amount of standing crop? Every word in the question is written for some reason. Managed ecosystem means these are artificial ecosystems. तो हम अब ये सोच रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा होगा जिसमें there would be highest amount of standing crop present, right?
So in case, if you look at these, the highest amount of standing crop through logic would obviously be present in a plantation, right? Agricultural land में the scope is not much, but if you look at plantations or plantations जैसे बनाई जाती हैं, वो इसलिए होती हैं because like one after the other you can plot things. This is a question of agriculture, but still I thought I'll cover it. Next question, which of the following animals lays eggs to reproduce? ये काफी basic science का question है, but फिर भी हम कर लेते हैं. I hope you've solved it after pausing the video. Dolphin, seal and whale, all and platypus actually, all of them are mammals, but platypus is very famous as the egg laying mammal. So that is the answer here. अगर आपको ये नहीं आता था कोई बात नहीं, अब आप नोट कर लो आगे के लिए. This is an important question. This I would recommend that you solve. Honestly मुझे नहीं आता था ये. Okay, this UPSC has asked for the first time to try and solve this. What is ecological amplitude? So now if you've paused the video and solved, I'll tell you. Ecological amplitude basically मतलब है, it is the adaptation of living organisms to changes in their environment, right? It is a species characteristic. हर species का एक अलग amplitude होता है. इसमें हम use करते हैं prefixes like uri and steno. So if I write something is uri-haline, it means it has a wide range of tolerance to haline. Haline means salty conditions. If I write steno-haline, it means it has a narrow range of tolerance to haline salty conditions. Now different species have different demands, and basis of these different demands from the environment that they need, and the extent to which they can tolerate is also different, right? तो ये ही है exactly, answer here is A, the range of demands and the consequent range of tolerance of a species to the fluctuations in environmental conditions. नहीं आता था कोई बात नहीं, this is a tough question, but अब आपको आ गया and high chance of repetition. So thank yourself for clicking on this video. Next, what is a pyrophilous organism? Now this is again a question that we can do through the technique of word breakdown. Pyro means fire, philous means loving. मैं आपको दिखाता हूं. तो pyrophilous है fire loving. हमें इंग्लिश ऐसे पढ़ाई नहीं जाती, but this is how English is constructed. The word philous always means love, right? That's what it means. तो आप देखो, phil anthrope, anthropology क्या होती है? Study of humans. Phil means love. Somebody who loves humanity is philanthropist. Philanthropist कौन होता है? जो बहुत ज्यादा डोनेट करता है, जो बहुत ज्यादा चैरिटी करता है. Somebody who hates humanity is misanthrope. तो miss is the word for hating. ऐसे ही आपने पढ़ा होगा misogynist. Misogynist is someone who hates women. तो gynae plus miss, hating women. And gynecology is the study of women and their reproductive parts, right? तो ये word breakdown करके भी कई question हो सकते हैं. अब यहाँ पे apply करते हैं. Pyro means fire, philous means love. So fungi growing in the soil of burnt terrains. This is the answer. Next question, which one of the following is not observed by the stations operated by the Central Water Commission? अब देखो, यहाँ पे पहले तो ये important है कि Central Water Commission क्या है, Central Ground Water Board क्या है, Central Ground Water Authority कौन सी एक्ट के अंडर बनी है, ये UPSC पहले भी पूछ चुका है, राइट? अब देखो, what is this question asking? This question is asking कि जो stations operate करता है CWC, उसमें वो क्या क्या मेजर करते हैं. अगर आप लॉजिक भी लगाओ तो भी आप देखो, डायरेक्टली ये पढ़ा हुआ आपने, ये काफी अनलाइकली है, बट बाय यूजिंग लॉजिक यू कैन अंडरस्टैंड दैट वाटर लेवल ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू मेजर, राइट? डिस्चार्ज ऑल्सो दे आर गोइंग टू मेजर, एंड सिल्ट they are going to measure, but the amount of conservation of water you have done seems very unlikely for the Central Water Commission to measure. Of course, this is post knowledge application. मुझे पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, but honestly I tried solving this myself. अगर मैं गैस करता तो मैं वाटर कंजर्वेशन नहीं करता, बट अब हमें पता चल गया अगर ये क्वेश्चन रिपीट होगा इट विल बी इजी फॉर अस. यहीं पे ये चीज लिखी है, दे मेजर द लेवल ऑफ वाटर, सिल्ट एंड डिस्चार्ज. इट यू कुड यूज लॉजिकल गेसिंग हियर, बट हो सकता है गलत भी हो जाए. इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेंट्रल वाटर कमीशन इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सर्केडियन रिदम्स? ये काफी बेसिक साइंस है, अनलाइकली टू बी रिपीटेड इन यूपीएससी प्रीलिम्स, बट स्टिल अब आया है तो हम कर ही लेते हैं. I hope you've tried to solve the answer. The answer here is A. Circadian rhythms is basically our natural sleep-wake cycle.
अगर आप ये वीडियो 12 बजे के बाद देख रहे हो तो आपका सर्केडियन रिदम थोड़ा सा खराब है. इट रिपीट्स एवरी 24 hours. Try sleeping before 12 and waking up around 8 to get the maximum productivity because exam सुबह होता है. Next, what is the bioenergetic approach? अभी मैंने आपको word breakdown की technique सिखाई. Now using that technique, try and solve this question, that what is bioenergetic approach in modern ecology? Okay, so I hope you solved. Answer here is A. मैं आपको बायोएनर्जेटिक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ. बायोएनर्जेटिक्स जस्ट डू वर्ड ब्रेकडाउन. इट टॉक्स अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनर्जी दे यूज्ड. सो इट इज अबाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड द प्रोसेसिंग ऑफ एनर्जी बाय ऑर्गेनिजम्स. क्या क्या प्रोसेसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एटीपी फॉर्मेशन, 10% लॉ. ये क्या होता है ये आपको यहाँ पता होना चाहिए. पिरामिड ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कब ऑक्सीजन रिलीज होता है, कब ऑक्सीजन अब्सॉर्ब होता है, वेयर इन विच सेल ऑर्गेनेल एटीपी इज फॉर्म्ड, विच सेल ऑर्गेनेल इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू नो. सिंस दे हैव आस्क्ड बायोएनर्जेटिक्स दे माइट आस्क इट डायरेक्टली एंड इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी हमें रिवाइज करने हैं. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स डू दिस. राइट, this is an easy question but unlikely to be repeated. The answer here is species, because all members of a species can reproduce to produce fertile offsprings. So all members of a species have a common gene pool. This is what species are. Right, again it's an easy question, not that difficult, so I hope you got the answer right. All right, let's move on to the next question. देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो आप प्रीलिम से बाहर हो जाओगे. राइट, सो पॉज दिस एंड ट्राई टू सॉल्व. मेरे हिसाब से दिस वुड बी इजी, एवरीवन वुड गेट दिस. द आंसर हियर इज पेरिस एग्रीमेंट. बट व्हाट यू नीड टू नो is what is the difference between Montreal Protocol, Kyoto Protocol, Bali Agreement. What is the meaning of protocol? Why is here there is protocol and here there is agreement? Montreal Protocol is under which agreement? All of this you need to know. Agreement or convention. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, because if they have asked one thing, they can ask their peripheral topics also. Next question भी काफी important है. According to solid waste management rules, the responsibility of waste generators has been fixed for segregation of waste into which of the following streams? कौन कौन सी streams में करना है? इस बार current affairs में भी था, right? And this question you need to solve. Take a moment, pause the video, try and get the answer. The answer here is C. Directly from current affairs into wet, dry and domestic hazardous waste. 3 categories. अब यहाँ पे और क्या important हो जाता है? Extended producer responsibility and biomedical waste. ये concepts भी आप साथ में revise कर लो. So, all your waste management will be sorted. Next question is this. Directly पूछा हुआ है duckweed या azolla. Very unlikely के prelims में इतना directly पूछें. ये questions जियो साइंटिस्ट के हैं और CDS के हैं, जहां पर बेसिक साइंस इज इन द सिलेबस एंड आस्क्ड मच मोर देन UPSC. राइट, तो यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन जैसे ज्यादा होते हैं बेसिक बायोलॉजी के. डोंट नीड टू वरी, जो अब यहाँ पे लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं. ऑल राइट, अब ये देखो, डू दिस. राइट, कंसिडरिंग हाउ मेनी टाइम्स द क्वेश्चन ऑन चीतास हैज बीन रिपीटेड, इस बार आपके लिए चीता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. पूनो पालपुर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. चीता के कैरेक्टर्स, नाम भी पूछ लिया चीता के, कहाँ कौन से नेशनल पार्क में लाया जा रहा है ये भी पूछ लिया. सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ऑल राइट, अब CAPF के क्वेश्चन करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस, ट्राई एंड सॉल्व. सो आई होप यू ट्राइड. देखो, बाउंड्री लेयर ऑफ फॉरेस्ट एट विच एनर्जी एक्सचेंज अकर्स एंड सम इंसुलेशन इज रिटर्न डायरेक्टली टू स्पेस. अब देखो, you can use sum of logic here. Again, which of the following looks like a boundary layer to you? Answer here is canopy, because none of the other fits the definition of a boundary layer. Right? जो canopy होगा, जो top layer होगा, वहीं पे तो ऐसे होगा कि कुछ energy exchange होगा और कुछ light reflect वापस हो जाती होगी. Right? Answer here is canopy. Canopy density पूछा था for very dense forest, moderate forest, etc. यहाँ पे forest canopy पूछ लिया. So these terms are important. अब ये question, sorry the answer is highlighted, I couldn't find a better screenshot of this, but look at this. The organisms that prefer concentration habitats refer, ये थोड़ा grammar is also messed up here. Organisms that prefer habitats that have high salt concentration. This must be the question, right? And again देखो, halophile.
हेलो मतलब हेलाइन, हेलाइन मीनिंग सॉल्ट, फाइल मीनिंग लविंग. So salt loving halophiles. Again, we are using the technique of word breakdown. तो अगर नहीं भी सुना हुआ, take a second and try to solve. हमेशा हेल्प होती है. All right. Next question. World Wetland Day. आपको याद है पहले भी अभी वर्ल्ड वेटलैंड डे पे एक क्वेश्चन आया था. यूपीएससी रिपीट करता है. ये सीएपीएफ 2022 का पेपर है, राइट? एंड इन जियो साइंटिस्ट 23 आई थिंक और सीडीएस 23 दे हैव आस्क्ड वर्ल्ड वेटलैंड डे. तो जो यूपीएससी के, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ बिकॉज ए यू वुड नॉट हैव टाइम टू डू दिस ऑन योर ओन एंड बी यू नो सम 2 or 3 क्वेश्चंस माइट गेट रिपीटेड फ्रॉम हियर. 2 वीडियोस बनेंगी लेट्स से ऑफ 2 hours कंबाइंड. पहली वीडियो 51 मिनट्स की थी, ये भी उतनी लंबी बनेगी. इससे अगर 2 क्वेश्चन भी आ गए ना, दिस माइट बी द डिफरेंस बिटवीन यू मेकिंग इट एंड फेलिंग इट. तो इसको ध्यान से करना. You've reached 15 minutes into this video. Most people have stopped watching. पिछली वीडियो 51 मिनट्स की थी, एवरेज वॉच टाइम था 8 मिनट. तो आप यहाँ तक पहुंचे हो. ट्राई एंड स्टिक टू द एंड एंड गेट दिस डन. दिस माइट हेल्प यू. ओके, ऑल राइट. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी. ठीक है, सबसे पहले हम CDS 23 के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे. ज्योग्राफी में हम CDS और जियो साइंटिस्ट ही करेंगे बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. इफ वी डू दिस, दिस मस्ट बी सफिशिएंट. All right, so try and solve this. Which of the following clues about which of the following states is being talked about here, and these are the clues for you. Try and solve. The last option is here is Chhattisgarh. The answer here is Assam. यहाँ जो red river है वो ब्रह्मपुत्र है, and blue hills is the blue tinge that those hills have. Right? Okay, इस बार बहुत सारे questions थे from mapping. अभी मैं आपको दिखाऊंगा. And in geography I am going to give you certain of my own notes also, right? Okay, next. Which of the following shares boundary with Telangana? अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आपको अगर याद होगा तो यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि गोइंग फ्रॉम एक्स सिटी टू वाई सिटी, शायद कोहिमा टू सम सिटी पूछा था कि हाउ मेनी स्टेट बाउंड्रीज विल यू हैव टू क्रॉस. ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है प्रीलिम्स में. तो यहाँ पर इसके रिपीट होने की अच्छे खासे चांसेस हैं. तो इन दिस क्वेश्चन ट्राई एंड थिंक ऑफ द मैप ऑफ इंडिया. एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं. यहां पर ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिले, हमें हर ऑप्शन को ध्यान से नहीं देखना. अगर टाइम बचाना हो हमें क्या देखना है, देखो यहाँ पे ओडिशा है, ओडिशा, यहाँ पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, राइट? आंध्र प्रदेश सब में है तो इसको नहीं पढ़ना. कर्नाटका सब में है तो इसको नहीं पढ़ना. बेसिकली यू आर बीइंग आस्क्ड टू चूज, या तो ओडिशा या छत्तीसगढ़ में से आपको चूज करना है, एंड लास्ट आपको महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में से चूज करना है. ये आंध्र प्रदेश कर्नाटका सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए और टू मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ ना पाओ इसलिए लिखा गया है. तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको 28 में को दिखेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना है. यहाँ पे पहले यहाँ पे काटा मार लेना है ऐसे, ताकि यू जस्ट सी व्हाट इज रेलेवेंट. क्योंकि ये तो चारों में है ना, उतने गधे तो वो भी नहीं है कि आपसे ये पूछेंगे कि तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से बॉर्डर लगता है या नहीं, राइट? अगर आप नोटिस करो तो महाराष्ट्र ऐसे जाता है और यहाँ पे ऐसे छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे तेलंगाना है. तो द आंसर हियर इज डी. एंड आपको इन्हीं के बीच में चूज करना था. जस्ट छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा यू हैड टू डिसाइड, एंड महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश यू हैड टू डिसाइड. आंसर इज डी. देखना इस बार बहुत क्वेश्चंस है मैपिंग से. ये देखो, रानी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट लास्ट ईयर शी डिड बोटिंग इन 4 डिफरेंट लेक्स, लोकटक, बारापानी, कोलेरू, पुलिकट. ध्यान से देखना, अभी इसी से ही एक और क्वेश्चन भी रिपीट होगा आज के ही वीडियो में. ठीक है, अब देखो अगेन लुक एट इट. अगर आपको ऐसे 4 ऑप्शन वाले बहुत सारा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, टाइम बचाना है. लोकटक लेक, मोस्ट पीपल विल नो इट इज इन मणिपुर. तो अब ऑप्शन सी और डी पे मार दो कट. ठीक है, जब आपने सी और डी पे कट मार दिया तो सी और डी अब नहीं पढ़ने, चाहे आगे उसमें कुछ भी लिखा हो, बिकॉज ये नहीं हो सकते, राइट? अब देखो, बरापानी या बारापानी, वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, मेघालय कॉमन है. ठीक है, कोलेरू, कोलेरू पे आपको डिसाइड करना है और पुलिकट पे आपको डिसाइड करना है, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड. इसके अलावा तो कोई यहाँ पे डिस्कशन का कोई मुद्दा नहीं है, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सम ऑप्शंस आर कॉमन. एक और ऑप्शन आप यहाँ पे कॉमन देख सकते हो, लेक पुलिकट. पुलिकट से वैसे आप ये सॉल्व भी कर सकते हो बिकॉज पुलिकट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, बट यहाँ पे तमिलनाडु को ही लास्ट ऑप्शन दिया है, right? So what you have to decide on is Koleru Lake, and Koleru Lake is in
आंध्र प्रदेश, पुलिकत से भी सॉल्व हो जाता। बट सी, टाइम बचाना है ऐसे क्वेश्चंस में। अगर लोकटक लेक आपको आता था कम टू 50-50, नीचे के ऑप्शंस अब नहीं पढ़ने, राइट। कई लोगों को लास्ट डे पे टाइम की वजह से भी उनका पेपर रह जाता है। इट इज बिकॉज वी स्टार्ट रीडिंग दीज ऑप्शंस। ऑल राइट, आंसर इज बी, कोलेरू इज एक्चुअली एट द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इसलिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता था केजी डेल्टा के बीच में है, एंड बाकी तो स्टेट्स हमने मार्क कर ही लिए। ओके, अब आपको एक चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट। दिस इज अ निमोनिक टू हेल्प यू। बेसिकली हमें इस निमोनिक से पहले तो ये तेलंगाना देख लो, यही क्वेश्चन था। तेलंगाना इज हियर, तेलंगाना का बॉर्डर नहीं लगता है ओडिशा से, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ मध्य प्रदेश है। ट्राई करना कि स्टेट्स का मैप खुद से बना सको। ऐसा तो हम मैप बनाते ही हैं इंडिया का, समथिंग लाइक दिस, है ना, इस तरह का तो हम बनाते ही हैं, बट हम स्टेट्स का नहीं बनाते कि कौन सा स्टेट कहाँ है। तो वंस यू ड्रॉ मैप लाइक दिस, इसके अंदर स्टेट्स भी खुद से मार्क करके देखो, बिकॉज प्रीवियस ईयर भी पूछा है और इस बार सीडीएस में बहुत ज्यादा ये चीज पूछी गई है। अब देखो ये क्या है, दिस इज अ निमोनिक। ओके, दिस इज अ निमोनिक फॉर विच स्टेट्स आर कवर्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। क्या निमोनिक है? राजस्थान और वेस्ट बंगाल के सीएम्स ने अपने मित्रों को गुजरात में झाड़ा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, दिस मीन्स द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल berated their friends in गुजरात। ओके, सो इससे कैसे याद होगा? फर्स्ट देयर इज राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल, ये राजस्थान, ये वेस्ट बंगाल। यस, देखो राजस्थान से निकल रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन सीएम इज छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश यहाँ से भी निकल रहा है। मीत्रो इज दीज टू स्टेट्स, मिजोरम एंड त्रिपुरा। देन गुजरात इज ऑब्वियसली गुजरात, एंड झाड़ा इज झारखंड। और यहाँ पे एल एल क्यों लिखा है? एल एल मीन्स लैंड लॉक्ड। क्यों लिख रहा हूं मैं ये? बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू इज दिस, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through how many coastal and landlocked states in India respectively? So this is an important question. You need to know every state to solve this question. You also need to know that there are total 8 states, right? तो अपने आप से states बनाने की कोशिश करना, because this year definitely there is a chance that these states might be asked. All right, next ये क्वेश्चन देखो। आई डोंट थिंक दिस इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, ये वैसे वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन है, आ भी सकता है, आई एम नोबडी टू से दैट। So Vicky told his friends about his visit to Stewart Island, Bay of Plenty, Hog Bay. Bay of Plenty is very famous and it is from New Zealand. Next. Okay, ये भी एक और मैपिंग का क्वेश्चन है, अगेन इंडियन मैपिंग पूछा है यूपीएससी ने, राइट। एंड आई थिंक क्योंकि पहले भी सिटीज पे क्वेश्चन आ चुका है, सो दिस माइट गेट रिपीटेड दिस ईयर। The question is, what will be the correct sequence of cities on the bank of river Ganga if someone moves from west to east? Right? यहाँ मैंने इन सारी सिटीज की मैपिंग कर रखी है, आई होप आपने ट्राई किया। एटलस में ये जरूर देखना, पहले कानपुर है, फिर प्रयागराज है, फिर वाराणसी है, ये यूपी की सिटीज हैं, एंड देन बिहार की सिटीज हैं पटना और भागलपुर, राइट। अगर हम गंगा जी पर ट्रैवल करेंगे तो ऐसे जाएंगे, एंड हियर दी ऑप्शंस आर, मतलब तो आप देख के कर ही लोगे, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, माइट बी आस्क्ड इन यूपीएससी ऑल्सो। अब देखो, अगर आपने स्टेट्स का मैप बनाया हुआ है, अगेन अ क्वेश्चन ऑन स्टेट्स, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एक्सटेंशन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? आंसर हियर इज छत्तीसगढ़। ओके, नाउ if it is 10 AM at GMT, what will be the time at 90 degree east longitude? ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें गलत नहीं करने होते, राइट। ट्राई सॉल्विंग दिस। देखो, 1 degree of a longitude is actually equal to 4 minutes. Why? Because the earth takes 24 hours to rotate. Not exactly 24 hours, but हम थोड़ा सा ही approximate कर रहे हैं। 24 hours into 60 minutes divided by 360 degrees. So 4 minutes is classified as 1 degree. And हमें पता है कि जब हम GMT से east जाते हैं तो we gain time. 90 degree east, 90 degree is 15 into 6. So that means 6 hours. यहाँ से थोड़ा सा सी साइड भी प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट। So answer will be 10 AM plus 6 hours. This is 4 PM. Okay, very easy question. I don't think any of us needs to get this wrong. That which of the following planets are termed as gas planets? एक बार यूपीएससी ने एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में भी पूछा है,
to take this opportunity to revise the solar system. Asteroid belt is between Mars and Jupiter, and every planet after the asteroid belt is a gas giant, which is Jupiter. अब देखो, अगर आप मार्स को भी एलिमिनेट कर लोगे तो भी ये आंसर आ जाएगा, बट अगर ये टेस्ट सीरीज में होता, ऑल्दो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट 3 ऑप्शन में मार्स नहीं होता. दैट इज बाय डूइंग यूपीएससी पेपर्स इज ऑलवेज बेटर. जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, सैटर्न. ऑलराइट, नेक्स्ट. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन सॉइल्स का. डायरेक्टली इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है. दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉइल टाइप आर गिवन. पहले आप ये पढ़ लो, फिर मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा कि दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, तो ये कौन सी सॉइल होगी. दीज आर योर ऑप्शंस, राइट. आंसर हियर इज अलूवियल सॉइल. अब देखो, सैंड, सिल्ट एंड क्ले के वेरियस डिपॉजिट्स हैं बिकॉज द रिवर गोज इन डिफरेंट फेजेस, राइट. कुछ फेज में वो क्ले डिपॉजिट करती है, सैंड, सिल्ट एक्सेट्रा. देन ये चीज़ तो डायरेक्टली पता ही है आपको. लाइम जो है यहाँ पे वो कंकड़ है. एंड दिस इज द बिगेस्ट गिव अवे. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज. एज पे कौन सी क्लासिफिकेशन है? खादड़ और बांगर, राइट. कौन सा न्यू है, कौन सा ओल्ड है, ये आप कमेंट्स में लिख के बताओगे. एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो दिस क्वेश्चन वी मस्ट गेट राइट. ऐसी चीज़ें हमें जरूर सही करनी है. रैंडम चीज़ों के पीछे नहीं भागना, बट जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं उनको सही करना है. ये क्वेश्चन देखो, ये भी अगेन अगर हमने रिवर्स और ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से बनाया तो हम कर सकते हैं. इस क्वेश्चन करते हुए आपने ये वर्ड ज़रूर पढ़ना था, बिकॉज बेसिन इज अ वेरी एक्सटेंडेड टर्म, राइट. सिर्फ इंडस रिवर नहीं, उसकी ट्रिब्यूटरीज, ड्रेनेज एरिया, सारा बेसिन में काउंट होता है. आंसर हियर इज डी. इसी टाइम पे इंडस की सारी ट्रिब्यूटरीज भी रिवाइज करो. इंडस से 2-3 बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है. एंड याद रखना, बेसिन इज अ वेरी वाइड टर्म. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वॉल्केनोज इज करेक्ट, राइट. वॉल्केनोज के बारे में पूछा है. हियर आर योर ऑप्शंस. ट्राई करना, जस्ट थिंक अबाउट इट. और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में, यू नो, व्हेन वी सी ऑप्शंस लाइक दीज, वी नीड टू रियलाइज कि मैक्सिमम 1 स्टेटमेंट इज रॉन्ग या नो स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि एक ही स्टेटमेंट गलत है इन तीनों में से, राइट. बिकॉज दिस इज व्हाट द ऑप्शंस टेल अस. एटलीस्ट 2 हैव टू बी करेक्ट. Volcanoes is one of the favorite topics of UPSC and the answer here is D. All right, ये करते हैं. Cloud type. Cloud type में बहुत confusion होती है लोगों को, ठीक है. तो cloud type में help करने के लिए of course I will give you something that will, you know, make your job easier. but पहले आप ये question करो. Cloud type में they are born through convection, produce hail, thunder and lightning, and they are cauliflower top, shaped towers and called anvil tops. Try and solve this question. अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ. आई एम गोइंग टू हेल्प यू. सो क्लाउड टाइप्स में लोगों को क्योंकि प्रॉब्लम होती है, आई हैव इंक्लूडेड माई नोट्स ऑफ क्लाउड्स इन दिस PDF विच कैन बी फाउंड इन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक ऑफ विच इज इन द डिस्क्रिप्शन. क्लाउड्स की क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइट. और ये जो वर्ब्स होते हैं, सिरस, ऑल्टो, स्ट्रैटस, इनके हाइट के भी कुछ मीनिंग है. देन शेप के कुछ मीनिंग है. वर्टिकल क्लाउड क्यूमुलस, रेन ड्यूरिंग इज निम्बस, राइट. अब हाई क्लाउड, सिरस मीन्स हाई, तो इफ यू पुट सिरो फर्स्ट, cirrostratus means high cloud layered that causes a halo around the sun. ऐसे cirrocumulus, cirrus, medium clouds, low clouds, vertical clouds, cumulonimbus, thunder cloud ये पूछा हुआ था. इसके अलावा सब में कुछ ना कुछ cauliflower shape, then mackerel sky, halo around sun, कुछ ना कुछ हर cloud का कुछ स्पेशल फीचर होता है. एंड उसकी भी पिक्चर्स मैंने यहाँ पे डाल के दिखाई हुई हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. तो प्लीज टेक दिस PDF एंड रिवाइज क्लाउड्स फ्रॉम हियर, राइट. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन. अब देखो, अगेन देखो, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा, इंडियन मैप से क्वेश्चन पूछा. गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो ऐसी है, राइट. तो शाउट आउट टू द ग्रेट पीपल ऑफ गुजरात एंड द आंसर हियर इज B. नाउ which of the following statements is correct, right. ये important है, you need to know this. Answer here is C. Do read up about this. Ports is bar important है, they've been in the news also and this can be asked. Now next, अब हम geoscientist पे आते हैं. Geoscientist में इस बार geography के questions were relatively easy. This is the first question. Which of the following zones of the atmosphere is farthest from the surface? तो layers of atmosphere आपको आने चाहिए.
I have remembered this through a very stupid mnemonic. The stupid monkeys tattled on the elephants. If you have a better mnemonic, you can write. But सबसे पहले troposphere, then stratosphere, then mesosphere, then thermosphere, then exosphere, and somewhere here there is the ionosphere. यहाँ पर ionosphere option है. Answer is C. Next, which of the following statement about Kullu Valley, Kullu Valley and river valleys are correct? मेरे को ये नहीं आता था, right? I have never read about Strike Valley and Transverse Valley. मेरे हिसाब से this is too much geography, but I can tell you the answer that Narmada flows in a rift valley. ये statement correct है, right? So if you go for just you look at just you look at this question and आपको third statement पता हो, ये common knowledge है, you can get to 50-50. अब देखो कैसे डिसाइड करना है. In this case, कांगड़ा वैली इज अ ट्रांसवर्स वैली. मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट, सो मैं नहीं डिसाइड कर सकता. आई विल नॉट गिव यू एनी फालतू का टिप कि देखो दिस इज अ डिफिनेटिव स्टेटमेंट तो ये गलत होगी. ये भी तो डिफिनेटिव स्टेटमेंट है, ये सही है. यू नीड टू हैव इंफॉर्मेशन टू डिसाइड दिस. इफ यू वांट टू गेस, दिस हैज टू बी अ ब्लाइंड गेस. देयर इज नो वे टू अप्लाई लॉजिकल गेसिंग हियर, राइट? अगर आप ज़्यादा लॉजिकल गेसिंग सोचोगे ना, यार डिफिनेटिव स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी डिफिनेटिव स्टेटमेंट है, राइट? इस चक्कर में आप अपने मार्क्स कम कर लोगे. तो ऑलवेज रिलाई ऑन नॉलेज फर्स्ट, एंड कहीं कहीं आप डिसाइड नहीं भी कर पाओगे. यूपीएससी का कट ऑफ इज 87. अगर आप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में हो और आप सॉल्व कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग इवन 50% करेक्ट, तो आप बहुत सही उसमें चल रहे हो. बिकॉज ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, दीज आर नॉट सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपको मार्क्स लाने हैं. यहाँ बस आपको गेम लूज नहीं करनी. मार्क्स आप कहाँ लाओगे? पॉलिटी में मार्क्स लाओगे. मार्क्स आप कहाँ लाओगे? इकोनॉमी में लाओगे, साइंस एंड टेक में लाओगे, आईआर में लाओगे, राइट? दीज आर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट फॉर मी. ज्योग्राफी, एनवायरमेंट आर दो सब्जेक्ट्स जहाँ पे यू जस्ट हैव टू बी बेटर देन अदर्स, राइट? तो नहीं करना है फालतू का लॉजिकल गेसिंग एक्सेट्रा यूज. जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, सी दिस. हाँ, मैं 50-50 पे था एंड आई हैव टू मेक अ डिसीजन. आंसर हियर इज डी. कांगड़ा वैली इज नॉट अ ट्रांसवर्स वैली. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब ऐसे क्वेश्चन आप गलत ना करो, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, राइट? डेजर्ट्स कहाँ लोकेटेड होती हैं, राइट? दिस हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी मेंस आल्सो. मैं आपको यहाँ रेकमेंड करूंगा कि आप बायोम्स जरूर रिवाइज करो फ्रॉम जीसी लियोंग. अगर आपके पास आप पढ़ने का टाइम नहीं है तो जीसी लियोंग में एक 12 मतलब एक टेबल बना है ऐसे जिसमें 12 बायोम्स दिखाए रखे हैं, समथिंग लाइक दिस. दिस इज मेड इन जीसी लियोंग, राइट? इसमें ये बायोम कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, डेजर्ट इसमें कहाँ है, सवाना कहाँ है, स्टेपीज कहाँ है, वगैरह वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड है. आंसर हियर इज सी. ये आप प्लीज जरूर रिवाइज करना. अब ये क्वेश्चन करो. दिस क्वेश्चन यू कैन डू फ्रॉम लॉजिकल गेसिंग बिकॉज द आंसर इज हियर इन द क्वेश्चन, राइट? इफ अ कोल्ड मास एंड अ वार्म एयर मास मीट, it will lead to the formation of a front and the answer here is frontal precipitation. यहां जरूर आप लॉजिकल गेसिंग यूज कर सकते हो. नेक्स्ट, मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डीप पॉन्ड एंड लेक्स में से कौन से वर्टिकल जोन में सबसे कम लाइट पेनिट्रेशन निकलती है? अब देखो, सरफेस तो हो नहीं सकता. मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे मैं इस क्वेश्चन को कर सकता था. सरफेस को नहीं हो सकता डेफिनेटली, है ना? सरफेस पे तो लाइट पहुंचेगी. लिटोरल जोन, आपने सुना है बे ऑफ बंगाल लिटोरल स्टेट्स, ये वर्ड सुना होगा, है ना? बे ऑफ बंगाल लिटोरल स्टेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे बे ऑफ बंगाल की बाउंड्री लगती है? तो लिटोरल मस्ट बी समथिंग क्लोज टू द सरफेस. जब ऐसे क्वेश्चन देखो और नहीं पता ये टर्म्स, ट्राई यूजिंग योर लेटरल नॉलेज. और भी तो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, उनसे नॉलेज यूज करने की कोशिश करो. अब मैंने अपनी लेटरल नॉलेज यूज करके ये दोनों गलत कर लिए. इट हैज टू बी बिटवीन दीज टू नाउ, राइट? बिटवीन दीज टू यू कैन नॉट डिसाइड इफ यू डोंट नो. But you have clicked on this video and you have stuck so far, right? अब अभी तक देख रहे हो. This is it, limnatic zone and profundal zone. सबसे deep profundal zone होता है. Answer is D. All right. Next question is what is duff? बिल्कुल factual question है. पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता. Answer here is partially decomposed litter. नहीं आता था, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता था, but अब आ गया है आपको. That is more important. Okay. Which of the following is a gravity transported soil? ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, राइट? बट द आंसर हियर इज कोलुवियल. व्हाट इज कोलुवियल सॉइल? ऐसे जो स्लोप्स के बेस पे ऐसे यहाँ पे सॉइल इकट्ठी हो जाती है, राइट? दिस इज कोलुवियल सॉइल. कुछ क्वेश्चंस जियो साइंटिस्ट के जियोलॉजी से लिंक्ड होंगे, तभी ये सिविल सर्विसेज का पेपर नहीं है. जस्ट रीड दिस एंड मूव ऑन. ओके, अब देखो, पूछा था आपसे कि लेक वाले क्वेश्चन आएंगे,
राइट, वहां पे आया CDS में लेक वाला क्वेश्चन, पुलिकट कहाँ लोकेटेड है, कोलेरू कहाँ लोकेटेड है, ये पूछा। सेम चीज दे हैव आस्क्ड हियर, दीपोर बील एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद थोड़ा सा इसको गूगल करना, राइट। पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, ये क्वेश्चन, ये सोर्स, ये यू नो ऑप्शंस वहां भी थे और ये ऑप्शंस यहाँ भी हैं। आंसर हियर इज द पुलिकट लेक। तो अब इस बार लेक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव जस्ट डन reframing, which of the following is not नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, नॉन काट लो, नॉन बांट लो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बताना है आपको। आंसर इज सनलाइट। ऐसे क्वेश्चंस प्लीज गलत मत करना। Which of the following states is the largest producer of natural gas in India? Largest producer of natural gas in India is राजस्थान। What is natural gas? इसमें कौन सा कंपाउंड होता है, राइट? ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे इफ यू आर स्टिल वाचिंग। ऑल राइट, कुमाऊं हिमालयास कहाँ लोकेटेड है? अगेन बेसिक ज्योग्राफी क्वेश्चन। इफ यू रेड इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी, डन योर मैपिंग प्रॉपर्ली, you will know the answer is B. Next, which of the following glaciers is not part of the Pir Panjal range? टफ क्वेश्चन है। आंसर हियर इज ए। एक बार हम इन ग्लेशियर्स के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेंगे अब, अगर हमारे पास टाइम है, नहीं तो बस ए आंसर देखो एंड मूव ऑन। दिस क्वेश्चन यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट रॉन्ग, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। दैट लिटिल अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेट अंडमान बाय, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे जो चैनल्स और स्ट्रेट्स और पैसेजेस हैं ये आपको डेफिनेटली आने चाहिए। सो फ्रॉम योर एटलस जस्ट टेक अ मोमेंट एंड रिवाइज दीज पार्ट, राइट? यहाँ पे 10 डिग्री चैनल कहाँ है, 6 डिग्री चैनल कहाँ है, वेयर इज द डंकन पैसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो द आंसर हियर इज द 10 डिग्री चैनल। अगर आपको याद करना है, राइट, सो यू कैन रिमेंबर that DSL, it is the Duncan passage. DSL is direct subscriber line. Duncan passage that separates the South Nicobar from South Andaman, or the last part of the Great Andaman Islands from Little Andaman, and it is the 10 degree channel that separates Andaman and Nicobar, right? तो ऐसा है कुछ कि there is South Andaman, then there is Duncan Passage, then there is Little Andaman, then there is 10 degree channel, and then there is Car Nicobar, right? ये चीज आपको पता होनी चाहिए. This is very important. Next question again. So next question was, which of the following is a tributary of the Krishna rivers? जो जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है वो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहता है. आंसर हियर इज डी. ओके, which of the following statements about break in the southwest monsoon is correct? आप स्टेटमेंट पढ़ लो, ऑप्शन वही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none, right? तो मॉनसून जो है वो एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का. इफ यू रेड, देखो सेकंड स्टेटमेंट तो यूनिवर्सली ट्रू है, राइट? इफ देयर इज it will blow parallel to mountains, rain will not happen. When it will hit the mountain, rain will happen. And first statement भी correct है. Answer here is C. But just to help you with the tough topic of monsoon, I have included some notes for you. तो यहाँ पे अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, मैंने मॉनसून के भी नोट्स आपको इंक्लूड करके दे दिए इसी पीडीएफ में. Now, which of the following countries is landlocked? South America में there are only 2 countries that are landlocked. One is Bolivia and the other is पैराग्वे. पेरू मत कर लेना, पेरू के साथ बढ़िया रिवर लगती है, राइट? तो आंसर हियर इज पैराग्वे. वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन है, राइट? दीज आर माय नोट्स फ्रॉम मॉनसून, राइट? यहाँ पे सब बताया हुआ है कि मॉनसून इज डायनेमिक, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट. तो IMD जो है वो 2 प्रेडिक्शंस करता है, कौन कौन से वेरिएबल लेता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू द फॉर्मिंग ऑफ मॉनसून, लैंड एंड सी ब्रीज, शिफ्टिंग ऑफ ग्लोबल विंड्स, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, कैसे फ्लो होता है, right? Then subtropical westerly jet stream forms, barrier of Himalayas, NWLP zone is formed, right? Northwestern low pressure zone, ये, right? Then subtropical westerly jet stream, and then it leads to April and May rain, and ये जो trade winds हैं ये Coriolis force की वजह से ऐसे bend करती हैं towards India. All of this is given. Now Tibetan plateau का क्या रोल रहता है? Tropical easterly jet stream, the splitting of the subtropical westerly jet stream by the Tibetan plateau, all of it is covered. एक बार पढ़ के देखना, आपको समझ आ जाएगा, right? Then also the withdrawal of the monsoon and the northeast monsoon is covered in these notes. मेहनत से बनाए हैं, एक बार प्लीज रीड करना. No question from monsoon will be missed here.
इसके अलावा कुछ चीज़ें मानसून के लिए क्या इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमारी सेकेंडरी सर्कुलेशन होती हैं और जो ब्रांचेस होती हैं। तो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं मानसून की, अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, कहाँ कहाँ हिट करती हैं, वेयर इज द रेन शैडो रीजन, you know where these branches go from, etc. This is covered on this map. Then secondary circulations कौन कौन सी रहती हैं, और उन secondary circulations में क्या क्या होता है, what happens in एल नीनो, साउथ अमेरिकन कोस्ट पे क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे क्या होता है, लानीना कंडीशंस में क्या होता है, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, एल नीनो मोडोकी क्या है, इंट्राडेकेटल पैसिफिक ओशन ऑसिलेशन एंड बोरियल समर इंट्रासीजनल ऑसिलेशन। ऑल ऑफ दिस आई हैव कवर्ड इन दिस सेट ऑफ नोट्स। एक बार ये पढ़ लेना अगर आपको मानसून में कंफ्यूजन होती है। अगर नहीं होती, यू आर कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन, प्लीज डोंट रीड दिस, स्टे विद वॉट एवर नोट्स यू हैव ऑलरेडी मेड। इस टाइम पे नई चीज़ें जितनी कम हो सकें उतनी कम करनी चाहिए। ऑल राइट, कम ऑन, लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद आंसर दिख गया होगा आपको, सॉरी अबाउट दैट। So which of the states of India has largest area under ravine? Answer here is A. Next question. Thundi Beach and Kadmat Beach, which were recently entered into the coveted list of Blue Flag Beach, eco label given to cleanest beaches in the world, are located where? Right, so these beaches are located in Lakshadweep, but यहाँ पे important है Blue Flag certification. Right, this term becomes very important for you. ऑलराइट, ये बीचेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्लू फ्लैग कौन देता है, और बाकी ब्लू फ्लैग बीचेस एक बार रिवाइज करके हम चले जाएंगे। ओके, लास्ट पार्ट वी हैव नाउ कम टू, विच इज हिस्ट्री। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आसान हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो एज यूजुअल टफ हैं, बट इफ यू आर स्टक टिल हियर, यू स्टिल वॉचिंग, आई एम अज्यूमिंग कि आप डिलीजेंट स्टूडेंट हो जो अभी भी सॉल्व करेगा। तो बंदी जीवन किसने लिखी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर इज प्रीटी क्लियर, इट्स सचिन सन्याल, डायरेक्ट स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। राइट, 3 स्टेट्स थे जहां गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी। द फर्स्ट वन वाज पंजाब, द सेकंड वन वाज सिंध, थर्ड भी ऐसा एक स्टेट था वेयर कांग्रेस वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बट स्टिल इट कुड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट। ये बात आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। अगेन ये क्वेश्चन है अबाउट इंडियन नेशनल आर्मी, इजी क्वेश्चन है। राइट, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट के बारे में हमें पता है, एंड ये भी फैक्ट हमें पता है कि इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिक्रूट किया गया था। आंसर हियर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स सजेस्टेड द डिसोल्यूशन ऑफ कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाय अ लोक सेवक संघ? आंसर हियर इज श्री मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट, which members of the Servants of India Society founded the Seva Samiti in Allahabad in 1914? Answer here is, I don't think this is given in spectrum. Answer here is Shri Hridaynath Tundru. Next, which of the following revolts did the Koya and Konda tribal chiefs rise against the local overlord from a Mansabdar family? Answer उतना important नहीं है। क्या important है कि ये जो रिवोल्ट्स होते हैं ये हमें अच्छे से पढ़ने, एंड रंपा रेवेलियन पे पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। सेम हियर, आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज कंक्लूडेड बाय साइनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज? स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आंसर इज ट्रीटी ऑफ सालबाई। नेम द बैटल इन विच द ट्रावनकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741? आंसर हियर इज द बैटल ऑफ कोलाचल। आई एम नॉट श्योर दिस इज गिवन इन स्पेक्ट्रम, एंड अगर स्पेक्ट्रम में नहीं है और आपको नहीं आता कोई बात नहीं। अगर स्पेक्ट्रम में नहीं है तो इन क्वेश्चन से कट ऑफ डिसाइड नहीं होने वाली। स्पेक्ट्रम वाले गलत करोगे तो आप कट ऑफ से नीचे जाओगे। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट दिस नॉवल सिटी ऑफ जॉय? दिस इज अ लिटिल बिट फ्रॉम करंट अफेयर्स, दिस वाज इन द न्यूज। द आंसर हियर इज डोमिनिक लेपेयर, and Dominic Lapierre and Larry Collins have also written a very important and interesting book called India at Independence, or India at Midnight, I think. Yes, India at Midnight. This is the book that has been written by these two. Must read for you. मैंने पढ़ी, it was really nice. If you want to read about what was happening the moment India got its independence, वो काफ़ी अच्छी book है। Here answer is Dominic Lapierre. Next question is about Dadni system. Answer here is textile production. बस ये इसलिए बता रहा हूँ, ये देख के याद कर लो कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन आंसर है।
दैट्स ऑल यू नीड टू नो, बिकॉज ये चीज़ें इन टर्म्स की कोई लिमिट नहीं है. वन लाइनर टर्म्स की एक कंपाइलेशन में आपको बना के देने की कोशिश करता हूँ. दीज आर वेरी हेल्पफुल. लेट मी ट्राई एंड फाइंड दोज वन वर्ड्स दैट यू कैन यूज फॉर the ancient and medieval history. I had made a compilation from 2 or 3 books. Let me find that and upload that on Telegram for you. Next question, आपको मैंने ही पढ़ाया ये, तो ये question please गलत मत करना, right? कि who among the following was not in the core leadership of the non-aligned movement in its formative phase, right? इसका निमोनिक आपको कराया था इजिप्टी, ई से इजिप्ट, उसका प्रेसिडेंट था नासिर, घाना से नक्रूमा जी, यूगोस्लाविया से इट वाज टीटो, इंडिया से नेहरू जी एंड इंडोनेशिया से सुकरानो जी. यहाँ पे कौन नहीं है? फिडेल कैस्ट्रो जी नहीं है, क्योंकि ये क्यूबा के हेड ऑफ स्टेट थे and he was not an initial member of NAM. It is surprising to know that Cuba was actually part of NAM at some point. Okay, ये question है, which of the following viceroys were the first one to officially shift their council to Shimla? Answer here is A, John Lawrence. Next question is about Mays Vidyapeeth. I have never heard of this, right? Answer here is A. बस इतना पढ़ के हम आगे चल देंगे. अब हमें पता चल गया, दैट्स इट. ऑलराइट, हिंदू धर्म सभा आप गलत नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज गिवन इन स्पेक्ट्रम. सो दीज क्वेश्चंस यू कांट मार्क रॉन्ग. आंसर हियर इज ए, राधाकांत देव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is notion of kinship projected by Kushana rulers is best evidenced through which of the following? Okay, so notion of kinship projected by Kushana rulers, यहाँ पर this question is directly from the new NCERT. Answer here is coins and sculpture. अब एक question आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बुक पढ़ने बैठ जाना. Whatever you've done for ancient medieval is fine. Just learn about this because this might be asked this year in the prelims also. Next question is about theories in ancient India. देखो, ancient medieval अगर आपने नहीं पढ़ा है ना अभी तक भी, तो मैं आपको 3 टॉपिक बताता हूँ, लूसेंट से पढ़ के चले जाओ. एक विजयनगर, एक भक्ति सूफी और एक बुद्धिज्म जैनिज्म. अगर मतलब इसके क्वेश्चंस आएंगे अगर एंशिएंट मिडीवल से, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं 3 टॉपिक्स आएंगे और ये आपको यहाँ भी दिख जाएगा. दीज आर द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी. यहाँ पे आंसर है एल्डर नन्स इन बुद्धिज्म. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल्स ऑफ राया गाजा केसरी एंड दया गाजा केसरी, ये कौन सी डायनेस्टी के साथ है? दिस इज द काकतिया डायनेस्टी. नहीं आता था तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता था. लर्न इट एंड मूव ऑन. नेक्स्ट, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस यू कांट गेट रॉन्ग in ancient medieval because this is connected to the Vijayanagar Empire and this you need to know, right? This is answer is Krishna and Tungabhadra. इन्हीं दोनों का जो द्वाब था उसकी वजह से ही गोलकोंडा और विजयनगर में फाइट भी होती थी, right? So this you need to know. Answer here is D. नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तक. अगेन कॉमन थिंग, स्पेक्ट्रम में भी है, ये चीज़ हमें बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है, राइट? आंसर हियर इज ट्रेड परमिट. देन बलूतेदार्स के बारे में पूछा है, राइट? ऑनेस्टली मुझे भी नहीं आता था, बट वी विल लर्न फ्रॉम दिस. आंसर हियर इज सी, 1 and 3. The second statement is wrong. They were not employed by an individual family. They were actually servant of the village as a whole, right? Moving on. कुछ क्वेश्चंस देखो हिस्ट्री में टफ आएंगे, बट ये क्वेश्चन ऐसे हम गलत नहीं कर सकते, जिसका आंसर अब आपको दिख गया है बिकॉज ऑफ माई बैड वीडियो पोजिशनिंग. बट दिस क्वेश्चन यू कांट गेट रॉन्ग कि सगुन, निर्गुण, अलवर और नयनार, इनमें से कौन सा इज रॉन्गली मैच्ड? तो अलवर हियर इज रॉन्गली मैच्ड. और ये किसकी भक्ति करते थे, ये बात आप जरूर कमेंट्स में लिख के बताना. नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जी आए हैं एंड ही वांट्स टू विजिट ऑल द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन दिल्ली. सो which of the following are the world heritage sites in Delhi? This is the question. Answer here is C. Okay. Factoid है, so I'm not explaining. Next question is Tomb of Sand. This has come from Current Affairs. Book was in the news, right? Just read the questions. The answer here is C. Both these statements are correct. And for this reason, it was very, very famous also. Next. Again, theme of India's G20 presidency, Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future, is drawn from where? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्वेश्चन, ये बिल्कुल रिपीट हो सकता है.
Answer here is Maha Upanishad. Now, next, name the location of the musical inscription containing groups of musical notes arranged for the benefit of his pupils by a king in the 7th or 8th century. Answer here is Kudumi Yamalai. मुझे नहीं आता था ये, right? But we have learnt now and we will move on. ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेंगे and we move on. अगर नहीं टाइम है तो ये भी नहीं पढ़ेंगे. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? कंगन हरी, दिस इज इंपॉर्टेंट, टेंशन मत लो, जो लिखा है वो सही आंसर नहीं है, राइट? या हो सकता है हो भी. तो कंगन हली, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज अ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट? ये पहले पूछा जा चुका है. भीमा रिवर पे है, यहाँ पे अशोका की इमेज है. आंसर इज एक्चुअली डी. ऑलराइट, अब जियो साइंटिस्ट के क्वेश्चंस देखते हैं. ये क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो आपके प्रीलिम्स से बाहर होने के बिल्कुल पूरे पूरे चांस हैं. ठीक है. विच अमंग द फॉलोइंग वाज वाइसराय ऑफ India when the partition of Bengal was announced? It was Lord Curzon, one of the worst viceroys India saw. तो अभी हम याद करो what were the bad things that Curzon did for India? What were his ridiculous decisions? This you need to remember. Then Neel Darpan किसने लिखी है? These questions you can't get wrong. Answer is Deenbandhu Mitra. Then who among the following revolutionaries founded the HSRA? This is not given in spectrum. तो ऐसे questions cut off decide नहीं करते. Founder पूछा है. All of them, even Chandrasekhar Azad ji was member of HSRA, but founder was Ram Prasad Bismil ji. Now, ये question, questions like these you can't get wrong. अगर थोड़ा बहुत भी ancient history पढ़ा है तो ये आपको आना चाहिए. It is asking to arrange in sequence these 4 events that have happened, right? So the invasion of Alexander, ये कब हुई? ये हुई 326 BC में. Then Indo-Greek rule in the northwest. This happened around 2nd century BC. When Alexander invaded, who was ruling India? The Nanda dynasty was ruling India. Okay. And then after Nanda dynasty, who came? Chandragupta Maurya. Soon after Nanda was removed. So uske baad, this accession of Chandragupta Maurya, this happened around 325-324 BC. And accession of Kanishk, this happened very late in 78 AD. Right? So this is 326 BC, 325, 324 BC. Then this is 2nd century BC and this is 78 AD. So very late. So answer here is D. First 1, then 4, then 2, then 3. Now, which of the following Harappan center specialized in making shell objects? इसका आंसर बालाकोट है. This is not the Balakot which the Indian Air Force attacked and killed terrorists at. This is located near Karachi and it is a famous Harappan site. It's in Pakistan. Again, chronology पे question आया है. We have to arrange these in order. Third Battle of Panipat happens in 1761. Nadir Shah invades in 1739. Warren Hastings की impeachment happens late, about 1788 or something. And Diwani was transferred after which battle? कौन सी battle के बाद? Which famous battle after which the Diwani was transferred? Somewhere between 1765. Battle का नाम आप लिखोगे comments में, right? So with this, you know that the answer is A. Chronology वाले questions, if you've read even once, you are likely to get right. Ajanta paintings, very favorite topic of UPSC. कि जातक से stories depend करती हैं या नहीं? बिल्कुल करती हैं. And they depict these scenes, yes. अब देखो, यहाँ आप logical guessing use कर सकते हो. अगर एक भी जातक स्टोरी का सीन यहाँ पे हुआ तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी. So when you are doubting statements like this, try and see the negative statement. Ajanta paintings do not depict stories from Jatak. Can you say that definitively? No. So this statement is right. And so is this one. Answer here is C. अब ये क्वेश्चन आप लॉजिकल गेसिंग से कर सकते हो. थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, बिकॉज यूपीएससी ने पहले भी लैंग्वेजेस के बारे में क्वेश्चन पूछा है. So which of the following statements about ostrich family of languages in India is not correct? Take a minute, pause and see. यहाँ देखो, option B में you have written only by Munda tribes, but a tribe like Ho also speaks this Munda group of languages. So answer here is B. This is not correct. ये statements please पढ़ लेना, because Ho and Munda, this was asked in 2021 कि ये क्या हैं, ये languages हैं. अब Munda group of language और ostrich family of language पूछ लिया, so this might be repeated this year. Nagar style Shikhara is visible in which of the following temples? Answer here is B. Dashavatar temple from Devgarh. It is in the Gupta age. तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा temples के बारे में ज़रूर पढ़ना है.
राइट. गुप्ता एज में दिस वाज द पीक ऑफ द नगर स्टाइल, राइट. 3 स्टाइल के टेम्पल कौन कौन से थे, क्या क्या होता था, दिस यू मस्ट रीड एंड रिवाइज. एग्जैक्ट यूपीएससी पीवाईक्यू, सेम चीज यूपीएससी ने पूछी हुई है 2017 में. आंसर इज जेम्स प्रिंसेप, राइट. अब यहाँ पूछ लिया तो अपने ही क्वेश्चंस ये आपस में रिपीट करता है. आई थिंक ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए हैं. महानवमी डिब्बा, अगेन दिस क्वेश्चन यू कांट गेट रॉन्ग. आपको बताया 3 टॉपिक्स हैं, विजयनगर, भक्ति सूफी और बुद्धिज्म जैनिज्म. ये हम्पी में लोकेटेड था, विजयनगर में. महानवमी डिब्बा वेरी फेमस स्ट्रक्चर, राइट. दीज थिंग्स यू कांट गेट रॉन्ग. लास्ट चीज हम आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पे. गवर्नमेंट स्कीम्स में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग. लेट्स सी, टू राइट अ नेगेटिव थिंग, आप अपने बारे में कोई नेगेटिव कमेंट लिखोगे क्या? नहीं. अगर आपको लिखना भी होगा तो आप मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट लिखोगे, राइट. टू राइट अ नेगेटिव थिंग अबाउट वन सेल्फ is something that is beyond governments, right? That's all I'll say here. So and beyond all of us also, frankly. So generally government की किसी भी बॉडी के बारे में या स्कीम के बारे में, if there is a negative statement that has a negative tone, very unlikely that it will be correct. ठीक है. With that in mind, let's start solving these questions. That does not mean that everything positive will be correct. अगर कोई ऐसी चीज दिख जाती है जो बहुत ज्यादा it seems very absurd or very hyperbole, that will be wrong, but negative चीजें are generally not right. Okay, तो ये नीति आयोग के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं. अब आपको इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है. तो थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. थिंक व्हाई द नीति आयोग वाज मेड, और इससे पहले कौन सी बॉडी थी. इससे पहले था प्लानिंग कमीशन. ये काम नीति आयोग का नहीं है, ये काम नीति आयोग का नहीं है. नीति आयोग इज अ थिंक टैंक. आंसर हियर इज 3 ओनली, राइट. ऑप्शन इसलिए नहीं दिखा है बिकॉज यू डिड नॉट नीड द ऑप्शंस टू गेट द स्टेटमेंट विद दिस क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन इनमें से क्या क्या करता है, राइट. दिस गवर्नमेंट स्कीम इज इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे. आंसर हियर इज सी. आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें गवर्नमेंट स्कीम ये पता चल गई कि 2023 में यूपीएससी ने पूछी है, तो इस साल भी पूछी जा सकती है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज अडॉप्टेड फॉर द पोषण अभियान. अगर आपको मेरी बात समझ आई है जो मैंने आपको गवर्नमेंट स्कीम्स करने से पहले बोली थी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे. आंसर इज सी, राइट. ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस, राइट. ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी यूज्ड. आंसर इज सी. बट इससे क्या पता चला कि पोषण अभियान इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज PMSSY, राइट. अब देखो इनमें से आपको कोई स्टेटमेंट क्या ऐसी लग रही है जो बहुत ही ज्यादा हाइपरबोली है, राइट. रीड द सेकंड स्टेटमेंट. यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, ये स्टेटमेंट गलत है. आंसर हियर इज ए. ओके, बट हमें इस आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये वाली गवर्नमेंट स्कीम अभी 2023 में पूछी है. तो अगर गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं कर रही थी आपने, तो एटलीस्ट जो यहाँ दी हुई हैं उनको कर लो. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट पार्ट ऑफ स्वयं प्रोग्राम. इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से काफ़ी क्वेश्चन हैं. मैंने आपको NEP सोशल इशूज़ में पढ़ाया है, वो ज़रूर पढ़ के जाना. There are a lot of questions from NEP related things this year, so I'm expecting कि वो इस बार वहाँ भी पूछेंगे, इंटरलिम्स भी पूछेंगे. क्लासरूम लेक्चर्स आर नॉट अ पार्ट, दिस इज अ वीडियो ऑनलाइन लर्निंग थिंग, राइट. अगर आप वैसे भी देखो, यू हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट हियर, राइट. वीडियो लेक्चर्स होंगे तो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ज़रूर होगा, और वीडियो लेक्चर्स होंगे तो उसकी PDF तो होगी. जैसे इस वीडियो लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, राइट. तो एज यू सी दीज 3 थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. If one is right, the others have to be right. Okay, all right. देखो फिर से NEP के ऊपर क्वेश्चन. अगेन जस्ट एक्सट्रीम स्टेटमेंट ढूंढो यहाँ पे कौन सी है, राइट. ये देखो, वोकेशनल एजुकेशन टू बी प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली बाय NGOs. क्यों भाई, और कोई नहीं कर सकता क्या? जस्ट एलिमिनेट स्टेटमेंट 3. तो अब 1 and 2 ओनली आपके पास रह गए, राइट. 1 तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. सेकेंडरी स्कूल शुड कोलैबोरेट विद ITIs, पॉलिटेक्निक्स एंड लोकल इंडस्ट्रीज. ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है? हो ही नहीं सकती. दिस इज सच अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट. तो आंसर इज B, 1 and 2 ओनली. जियो साइंटिस्ट 23 के लास्ट सेट पे आ गए हैं हम. इफ यू स्टक टिल हियर, हार्डली 5 मिनट्स बचे हैं. आई विल डेफिनेटली गिव यू अ रिवॉर्ड फॉर योर कॉन्फिडेंस इन द फैक्ट दैट यू आर वर्किंग सो हार्ड. जस्ट स्टे विद मी. Which one of the following is not an objective of one stop center? Again, इसमें जरा odd one out ढूंढ के दिखाना. Which of these is odd one out? Gender based violence, women affected by violence, specialized services, victims of acid attack. Similar चीजें हैं ये unfortunate चीजें इंडिया में होती हैं, but these are similar things, right?
चीपर क्रेडिट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऑड वन आउट है, यही पूछा है। तो यहाँ पे आप लॉजिकल गैसिंग यूज करो, बिल्कुल यूज हो सकती है। ओवर थिंकिंग करोगे लॉजिकल गैसिंग में, इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम। जननी सुरक्षा योजना, ऑलराइट, फेमस स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम, देखो सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, जननी मदर सुरक्षा सेफ्टी योजना स्कीम, सेफ मदरहुड स्कीम, आंसर ही दे दिया। एंड इफ इट इज अ सेफ मदरहुड स्कीम, इट हैज टू स्टॉप maternal and neonatal mortality. Both statements are connected. नाम में ही आंसर है सी, both 1 and 2. ओके, नाउ जन शिक्षण संस्थान में क्या सही नहीं है? अगेन वी जस्ट हैव टू फाइंड द एक्सट्रीम स्टेटमेंट अबाउट जन शिक्षण शिक्षण संस्थान। एक्सट्रीम स्टेटमेंट कौन सी लग रही है आपको यहाँ पे? राइट, विच इज वेरी अनलाइकली टू बी करेक्ट। वाई विमेन ओनली? इट इज फॉर एवरीवन। आंसर इज बी। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं पढ़ी तो जेएसएस जरूर पढ़ के जाना। ऑल राइट, बताया था एनईपी में काफी क्वेश्चन आए हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये मैंने डायरेक्टली पढ़ाया सोशल इश्यूज में, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा आंसर बता रहा हूँ। ए, ये क्या पॉलिसी थी? इजी एंट्री इजी एग्जिट, दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, दिस यू नीड टू नो। आंसर इज ए। ऑल राइट, so this is your reward, right? If you have solved diligently till here, you are better than most, right? आपने यहाँ तक मेहनत करी है, you are better than most, right? You are going to do great in this year's prelims. I believe in you, and if you believe in yourself and you stuck till the end of this video, just write in the comments, I believe in myself, I am going to clear prelims 2023. Show me that self-belief, show me that positivity. Thank you for sticking with me. Best wishes from my side. I'll see you in the next one. Thank you.